بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج کے کورس میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کورس کا آغاز ہم سمپل ایز پاسبل کمپیوٹر ورژن 1 سے کرنے جا رہے ہیں. تو چلے دیکھتے ہیں کہ سمپل ایز پاسبل کی انٹروڈکشن میں کیا ہے. سمپل ایز پاسبل کمپیوٹر کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں یہ ہمارے لیے آج کل کے کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے ایک بیس پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آج کل کے کمپیوٹرز کو ہم نے سمجھنا ہے تو پہلے ان کے جو ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، جو آرکیٹیکچر ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں آسانی سے آج کل کے کمپیوٹر سمجھنے میں آ سکتے ہیں. ہم آسانی سے آج کل کے کمپیوٹرز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اسٹیپ 1 کو پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جتنے بھی ایڈوانس کمپیوٹرز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح کسی آپریشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اسٹیپ 1 کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی ایگزیکیوشن پروسیس کو سمجھ لیتے ہیں، تو آج کل کے ایڈوانس کمپیوٹر کے جتنے بھی کروشل آپریشنز جو ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم. نیکسٹ ہے کہ سمپل ایز پاسبل چونکہ ایک نہایت ہی سمپل کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آج کے جتنے بھی ایڈوانس ٹاپکس ہیں یا کانسیپٹس جو آلریڈی کمپیوٹر میں امپلیمنٹڈ ہیں اس کو ایکسپلور کرتا ہے اور ہمیں سمجھانے میں یا اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے سمپل ایز پاسبل ایک بس آرگنائز کمپیوٹر ہے. یہاں پہ جتنے بھی رجسٹرز ہوں گے وہ سارے ڈبلیو بس یا مین بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے ٹرائی اسٹیٹ بفر کی تھرو. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سمپل ایز پاسبل کا بلاک ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں ہمارے پاس جو فرسٹ نمبر پہ ہے وہ ہے پروگرام کاؤنٹر. ہم ہر ایک بلاک کو مزید ایکسپلین کریں گے، جتنا ہم اس کمپیوٹر کو سمجھیں گے اتنا یہ بلاکس ہمارے سامنے ایکسپلور ہوتے جائیں گے. تو جسٹ یہ بلاک ڈائیگرام آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ہر ایک بلاک کو مزید ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بلاک کیا کرتا ہے اور اس کی کیا فنکشنالٹیز ہیں اور کس طرح کرتا ہے. تو فرسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پروگرام کاؤنٹر. یہ ایک 4 بٹ کا رجسٹر ہے، بیسیکلی کاؤنٹر ہے جو کہ ایک کاؤنٹر ہے جو کہ ایک رجسٹر کے طور پہ ہے، لیکن یہ آپ کو ایڈریسز جنریٹ کر کے دے گا. کس طرح کیا ہوگا وہ آگے دیکھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان پٹ اینڈ مار رجسٹر. کمپیوٹر کو جب ہم پروگرام کرتے ہیں اور جو ریم میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹور کرنے کے لیے اور اس کو ریٹریو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایڈریسز ہوتے ہیں وہ ایڈریسز یہاں پہ آتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک 4 بٹ کا اگین رجسٹر ہے. اسی طرح آپ کو تھرڈ بلاک نظر آ رہا ہے، یہ ایک ریم ہے جو کہ بیسیکلی ایک ریڈ اونلی میموری ہے، لیکن ہم اس کو ایز اے ریم یوز کرتے ہیں. یہاں پہ 16/8 کی یہ ریم ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انسٹرکشن رجسٹر. انسٹرکشن رجسٹر یا آئی آر سمپل اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ایک 8 بٹ کا رجسٹر ہے جو کہ آگے جا کے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹرولر سیکوینسر. یہ سارے آپ اس کو دیکھیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس ڈبلیو بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس ڈبلیو بس کو ہر ایک بلاک سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو پروگرام کاؤنٹر سے اس کو کچھ ڈیٹا آ رہا ہے، یعنی یہ جو ہے اس
डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करा ये एरो। इसी तरह आपके पास जो डब्ल्यू बस से मार की तरफ एरो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू बस से डेटा जो होगा या जो भी उस टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो एड्रेस होंगे, चाहे उसको आप डेटा फिलहाल कह लो, वो आपके इनपुट एंड मार की तरफ फ्लो करेगा। अच्छा जी, तो ये सब के साथ नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक एकमुलेटर है। एकमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसको हम जनरली एक जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं, जो कि मोस्टली फंक्शंस में ये रजिस्टर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडर सब्ट्रैक्टर। चूंकि एक निहायत सिंपल कंप्यूटर है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये ब्लॉक हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बी रजिस्टर। तो ये भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, जो कि बेसिकली यहाँ का डेटा एडर सब्ट्रैक्टर की तरफ जाएगा और एकमुलेटर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होके रिजल्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो है आउटपुट रजिस्टर। तो ये आउटपुट रजिस्टर हमारे पास एज अ आउटपुट काम कर रहा है। कंप्यूटर का जो भी उस स्पेसिफिक टाइम पे रिजल्ट होगा वो हम इस आउटपुट रजिस्टर के थ्रू देख सकते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी साइज भी 8 बिट की है, यानी 8 बिट का डेटा ये रिसीव कर सकता है और उसको आगे जो है वो डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ एक डिस्प्ले कनेक्ट है। जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया सेप 1 के ब्लॉक डायग्राम का। अब इसके आर्किटेक्चर की तरफ देखें तो ये जितनी बातें मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ वही रिपीट होंगी। सबसे पहले ये आप देखें कि इसका जो डब्ल्यू बस है वो 8 बिट इसकी विड्थ है, यानी 8 बिट का डेटा ये एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोग्राम काउंटर जो था वो हमारे पास 4 बिट का काउंटर है, और ये एड्रेसेस जो है वो जनरेट करेगा, जो कि बेसिकली 0 से स्टार्ट होके 15 तक कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर या कोई भी रजिस्टर जिसको हम एज अ काउंटर यूज़ करते हैं, अगर वो 4 बिट का है तो वो 0 से 15 तक काउंटिंग कर सकेगा। अगर वो 3 बिट का है तो वो 0 से 7 तक काउंटिंग कर सकता है, और लेट सपोज अगर वो 5 बिट का है तो वो 0 से 31 तक काउंटिंग कर सकता है। तो सेप 1 में हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है वो 4 बिट का काउंटर है, तो लिहाजा यहाँ पे वो जो एड्रेसेस वो जनरेट करेगा वो 0 से 15 तक एड्रेसेस जनरेट कर सकता है, या जो काउंटिंग कर सकता है, जो आगे जाके एज अ एड्रेस हमने यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट इसका जो आर्किटेक्चर है, तो रैम में अगर आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मार जो है उसको हमने 4 बिट का एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर ने सेट किया था वो 4 बिट का एड्रेस हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पहुंचा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें 16 बाइट की यानी 16/8 मेमोरी है यहाँ पे, तो लिहाजा अगर हम देखें तो 0 से 15 तक हमारे पास इसके एड्रेसेस होंगे, जो कि टोटल 16 लोकेशंस हैं। तो हर एक लोकेशन पे हम 1 बाइट का डेटा रख सकते हैं, जो कि फिर जाके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ डेटा भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 16 लोकेशंस होंगे जिसके एड्रेसेस 0 से लेकर 15 तक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास 8 बिट का या 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि मेमोरी से या रैम से हमारा डेटा जो है वो रिसीव करेगा और उसको फर्दर आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा प्रोसेस 6 साइकिल्स में होगा, 6
टी स्टेट्स में होगा, हम उसको आगे जाके 6 टी स्टेट्स या आप उसको फिलहाल पल्सेस कह सकते हैं। इन 6 पल्सेस के थ्रू हर एक पल्स आपको एक 12 बिट का माइक्रो इंस्ट्रक्शन वर्ड जनरेट करा के देगा, जो कि आगे जाके कंप्यूटर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा, या कौन से कंपोनेंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो एक्यूमुलेटर है, वो 8 बिट का एक्यूमुलेटर है, यानी 8 बिट का ये डेटा रिसीव कर सकता है और 8 बिट का डेटा ये आगे सेंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बी रजिस्टर, तो अगेन एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, बिल्कुल एक्यूमुलेटर की तरह ये भी 8 बिट का डेटा रिसीव करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है। एडर सब्ट्रैक्टर हमारे पास अगेन 8 बिट का है, अगर 8 बिट का डेटा हम रिसीव करते हैं तो उन 8 बिट्स को हम ऐड कर सकते हैं और उन 8 बिट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका डेटा जो है या जो भी रिजल्ट है वो आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 बिट का रजिस्टर है आउटपुट, यानी एक ऐसा रजिस्टर जिसको 8 बिट का डेटा मिलेगा और उसको एज आउटपुट यूज़ किया जाएगा और वो आगे जाके उसको किसी डिस्प्ले पे लेके जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम देखते हैं स्लाइड में जो कि हमारे पास है, वो हमने ये देखना है कि इसमें कितने यानी क्या क्या फीचर्स हैं SAP 1 में। तो SAP 1 का जो पहला फीचर जो है वो ऑफ कोर्स यही है कि ये इंतहाई सिंपल है, जितना ये सिंपल हो सकता था, तो सिंपल एज पॉसिबल इसका फर्स्ट फीचर है। नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि हम इसके साथ 8 LEDs कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो शो किया जा सकता है। तीसरा फीचर यहाँ पे ये है कि इसके साथ हम 16 बाइट्स की रीड ओनली मेमोरी लगाते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम इसके साथ रीड ओनली मेमोरी लगाते हैं, यानी ये मेमोरी पहले से हम प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर अभी रनिंग स्टेट में नहीं होता, उसके बाद ये हम वहाँ पे लगा के हम कंप्यूटर को रन करते हैं। तो 16 बाइट की मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है। एक और फीचर इसका ये है कि यहाँ पे सिंपल एज पॉसिबल 1 में 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन सेट में 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें से 3 जो है उनके साथ ऑपरेंड लगाया जाता है या ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड आपको पता है उसको कहते हैं जिसमें वो काम करते हैं या काम किया जाता है। तो इनमें से 3 इंस्ट्रक्शंस के साथ एक ऑपरेंड होता है जो कि बेसिकली अगेन एक एड्रेस होता है, और वो किस तरह यूज़ किया जाता है हम आगे देखेंगे। जो बाकी 2 है उनके साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते या कोई ऑपरेंड नहीं होते, वो इटसेल्फ कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे पास SAP 1 के जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ इस स्लाइड में आपको नज़र आए। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी जितनी भी अभी हमारे डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस SAP 1 आर्किटेक्चर को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और कोशिश करें कि अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और जितनी हमारी डिस्कशन हुई है इस पे स्पेसिफिकली कमेंट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।